So page number 8, new chapter in history. Chapter number 2, culture heritage of India, traditional handicraft and fine arts. Now, if you can go to the index of the book, just go there. डायरेक्टली अपने इंडेक्स पेज पे चले जाओ. मुस्तान से हंसो मत, निकाल दूंगी. तुम्हें पता है. एंड आफ्टर एवरी 5 minutes आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड यू. अभी बंद हुआ तो भाई सबको करती हूँ. जिसका वीडियो बंद है वो सब टारगेट में है. Okay. Now, if you can see the index, in the first chapter we learned about the heritage, right? We learned about the Indian heritage, meaning and types and divisions and all these things. उसके बाद heritage में जितनी भी चीजें आती है, that we are going to learn one by one. That is, first in this chapter we are going to learn about handicraft and fine arts. फिर उसके बाद sculpture and architecture, then literature, then science and technology, then places of heritage, और finally ये सबको preserve कैसे करेंगे that one. So in short, whatever things we had learned in first chapter कि cultural heritage में क्या क्या आता है, तो वो जो भी आता है वो one by one we are going to learn in each and every chapter. If we consider this chapter number 2, so in this chapter it is divided into 2 parts, traditional handicraft and fine arts. तो handicraft वाला जो portion है, under that we are going to learn about clay work, weaving work, वो जो embroidery और जरदोजी और वो सब करते हैं ना, that one. Then leather work, diamond work, bead work, metal work, wooden work, etc. ठीक है, ये सब आएगा हैंडीक्राफ्ट वाले पोर्शन में. सेकेंड इज फाइन आर्ट्स. फाइन आर्ट्स में आता है पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, ड्रामा. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? सो इन शॉर्ट this chapter is broadly divided into 2 parts. Handicraft, we will learn metal work, clay work, wooden work, etc. Fine arts में dance, music, drama, painting. Are you clear with the name of the chapter, all of you? I can see Namra. Yes, Namra. I hope no doubts in the title of the chapter. क्या लर्न करने वाले इस चैप्टर में वो पता चल गया आपको? Okay. India is a country of rich cultural heritage, which we already know. It includes materialistic and genetic heritage. अब ये क्या आ गया? What is materialistic heritage? What is genetic heritage? हमें तो सिर्फ 2 पता था, cultural heritage and natural heritage. Anything which is God gifted comes under the title natural heritage, and anything which is made by our ancestors and which we are using since hundreds of years, that is cultural heritage. अब इसमें नहीं आ गया materialistic heritage and genetic heritage. Do you have any idea क्या हो सकता है ये? हाँ बोलो मुस्तान से. But as the name tells you, materialistic heritage मतलब something in the material form. हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनके पास अगर कोई जमीन है या बिल्डिंग है या इंडस्ट्री है और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, then that comes under the title material genetic, like house, land, property, factories, वो सब materialistic heritage में आता है, material form में. You know what is material, right? जब भी सपोज दादाजी चले जाते हैं ऊपर, तो दादाजी के पास जितनी भी लैंड थी, जितने भी हाउसेस थे, फैक्ट्रीज थे, जितना भी कैश था, अगर कुछ ज्वेलरी गोल्ड था, तो दैट दादाजी विल डिवाइड अमंग अवर फादर एंड अदर ब्रदर्स. पापा और चाचा के बीच में डिवाइड करते हैं. तो ये चीजें दे आर नोन एज मटीरियल हेरिटेज. फिर जब पापा जाएंगे तो वो हमें देंगे, हम जाएंगे तो हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देंगे. So any you can say things in the material form, in the you can say in the heritage form जब आपको मिलती है, it is known as materialistic heritage. Any doubts?
ओके, नेक्स्ट कम्स जेनेटिकल हेरिटेज, जो कि आता है फ्रॉम द वर्ड जीन्स. वो टी शर्ट जीन्स वाला जीन्स नहीं, जो हमारे बॉडी में होते हैं जीन्स, वो वाले जीन्स. ओके, कि अगर पापा को चश्मा है तो बेटे को भी चश्मा आएगा, पापा को सर पे कम बाल है तो बेटे को भी कम बाल होंगे, राइट. अगर मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल है तो बेटी भी ब्यूटीफुल होगी. मम्मी को बहुत गुस्सा आता है तो बेटा भी ऐसा पैदा होता है, उससे ज्यादा गुस्से वाला. तो समथिंग विच यू इनहेरिट एज अ बायोलॉजिकल फ्रॉम योर पेरेंट्स, जीन्स में आता है. समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता होगा कि कभी कभी मदर डॉटर और फादर सन, उनके फेसेस सिमिलर होते हैं. जैसे ही बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो क्या बोलते हैं, एकदम मम्मा जेવો લાગે છે, एकदम पापा जेવો લાગે છે. मीन्स दिस इज नोन एज जेनेटिक हेरिटेज, जो आपके पेरेंट्स से आपको जीन्स में मिलता है. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? राइट. नाउ अगेन लीड द सेंटेंस. हाँ यस, मुस्कान से डायबिटीज भी जेनेटिकल हेरिटेज में आता है. देर आर सम ऑफ द डिजीजेस ऑल्सो विच ट्रेवल फ्रॉम जीन्स. ओके, राइट. सो इट इंक्लूड्स मटीरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज. अब इसका डेफिनेशन दिया है. अ चाइल्ड इनहेरिटेज फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स बाय बर्थ इज नोन एज जेनेटिक हेरिटेज. इसको अंडरलाइन करो. Physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance. Whereas house, land, estates like property obtained from ancestors is called material heritage. इसको भी underline करो. House, land, estates like properties obtained from ancestors is called material heritage. ओके, तो ये हो गए डेफिनेशन. फर्स्ट वाज डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, सेकेंड इज द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल हेरिटेज. एनी डाउट्स इन दिस टू? एनीबडी? एनी डाउट्स? Okay, I cannot see Dhruvin. Similarly, whatever man obtains or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage. तो ये तो हमें already पता है. When we make something with our intelligence or with our skills and ability, तो वो आएगा under cultural heritage. Okay? In the same manner, traditions, customs, rituals, and as special types of lifestyle adopted by our ancestors is also known as cultural heritage. ट्रेडिशंस, कस्टम्स मतलब आपने सुना होगा कि जब मैरिजेस में लेडीज इकट्ठा होती है ना. अगर मम्मी के पास बैठे हो तो पता होगा कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी सेलिब्रेशन है, अगर 5-6 लेडीज साथ में बैठ गई तो जनरली क्या बातें होती है, कोई भी रसम मतलब कोई भी विधियां चल रही है तो वो क्या बोलेगा, અમારામાં તો આવું થાય, અમારામાં તો આવા કલરના કપડા પહેરે, અમારે આ વિધિ પહેલા થાય. You might have heard this thing. सुना है मम्मियों को बातें करते हुए, राइट. तो અમારામાં આવું થાય मतलब इट इज देयर ट्रेडिशन. दूसरे बोलेंगे અમારામાં આ કલરના કપડા પહેરે, दिस इज देयर ट्रेडिशन. तो दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विच इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. समझ में आ रहा है? इन द सेम मैनर, ओके ये तो हो गया. In addition, other manners like education, farming, trade, rules and regulations for daily life, festivals, entertainment, art and handicraft, beliefs and skills are also included in culture heritage. Traditions, customs तो आते हैं. एजुकेशन, फार्मिंग मतलब दादाजी भी फार्मिंग करते थे, पापा भी फार्मिंग करते हैं, मैं भी फार्मिंग करती हूँ, मेरे बच्चे भी फार्मिंग करेंगे. ट्रेडिशन. ओके. ट्रेड, ट्रेड जिसमें आता है बिजनेसेस. पर दादा ने एक फैक्ट्री खोल के रखी थी, वो बिजनेस करते थे, फिर वही बिजनेस हैंड ओवर किया दादाजी को, फिर पापा को, फिर मुझे, फिर मेरे बच्चे. दिस इंक्लूड्स ट्रेड्स. रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस आल्सो इन अ हाउस. ओके. तो ऑल दीज थिंग्स लाइक फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट, व्हाटएवर, ये जितनी भी चीजें हमको कॉमा 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 करके दी है, एवरीथिंग
It always passes from one generation to other generation. And so they are an example of cultural heritage. Am I very clear, all of you? समझ में आ रहा है ना? Okay, let's go to the next paragraph. India, being an ancient country of the world, has its best traditions, social values, dogma. Now, underline this word dogma. It does not at all relate to the word DOG dog. Dog का कुछ relation नहीं है. Dogma actually means beliefs. Underline the word dogma and write the meaning beliefs. इंडिया में अपनी खुद की ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, बिलीव्स है, कस्टम्स है, फैमिली सिस्टम है. ओके, सो इट इज अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज. देयर आर रेफरेंसेस सेकेंड पैराग्राफ में. There are references of 64 arts in our ancient literature. 64 arts को circle कर दो. This is many times asked in our MCQs or fill in the blanks, whatever. ठीक है, तो in short there are 64. अगर हम इंडिया का लिटरेरी वर्क देखे, पुराने बुक्स या इंस्क्रिप्शंस रीड करेंगे, तो सब मिला के इन ऑल देर इज अ मेंशन ऑफ 64 आर्ट्स. अब ये आर्ट में क्या क्या आता है? हैंडीक्राफ्ट, वुलन वर्क, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सभी को मिला के इन ऑल वी हैव 64 डिफरेंट आर्ट्स. तो दिस फिगर यू शुड बी रिमेम्बरिंग. ओके, विच फिगर? यस. अब उसमें से थोड़े बहुत एग्जांपल्स हमको दिए हैं. दे आर हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से बनाई हुई चीजें. वर्कमैनशिप, दैट इज स्किल्स. किसी को पेंटिंग अच्छा आता है, किसी को ड्राइंग अच्छा आता है, किसी को मूर्तियां बनाना आता है. दिस इज नोन एज स्किल और वर्कमैनशिप. कसब. नाउ कसब इज अ ट्रेडिशनल वर्ड. किसी ने कसब के बारे में सुना है? डू यू नो व्हाट इट इज? एनी आइडिया? अच्छा, एक्चुअली कसब इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क. लेकिन वो एम्ब्रॉयडरी है, इट इज ऑलवेज डन ओनली विद गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड. राइट? तो जो गोल्डन सिल्वर थ्रेड से क्लोथ्स में एम्ब्रॉयडरी करके उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, देन दैट वर्क इज नोन एज कसब. कश्मीर में ये ज्यादा चल रहा है. और आजकल इन दिस मॉडर्न डेज, कसब बीइंग अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन, तो वो करने वाले आर्टिस्ट भी दे आर लेस इन नंबर. एंड द प्रोडक्ट विच दे मेक, इट इज वेरी कॉस्टली नाउअडेज. जैसे आपको पता है ना, एंटीक चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है. तो सिमिलरली कसब, इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस. धीरे धीरे स्किलफुली वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एंड स्पेशली विद द गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड. कसब आर्ट. डू यू अंडरस्टैंड? अगर आप चाहो तो आप मीनिंग लिख सकते हो. एम्ब्रॉयडरी विथ, लिख लो ताकि फ्यूचर में याद रहे आपको. एम्ब्रॉयडरी विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स. ये आगे भी आएगा कसब, तो याद रखना. आजकल कसब के क्लोथ्स जो होते हैं इतने कॉस्टली आते हैं, तो जनरली लोग क्या करते, खुद तो नहीं पहनते, लेकिन भगवान को पहनाते. अगर किसी के घर वो ठाकुर जी है, तो आपने देखा होगा कि ठाकुर जी को छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं. फिर अगर आप मंदिर में जाओगे, तो मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां हैं, तो उनको ब्यूटीफुल क्लोथ्स, एकदम अच्छे वाले कपड़े पहनाते हैं भगवान की मूर्ति को. उसमें का सब वर्क आपको एम्ब्रॉयडरी में दिख सकता है नाउअडेज, बिकॉज वो इतना कॉस्टली है कि रेगुलरली हम लोग तो उसको पहन के अफोर्ड नहीं कर सकते. और शादियों के सिवाय कहीं यूज भी नहीं होता है. ऐसे पहन के निकलोगे तो कोई हंसेगा तुम पर. ओके, सो दिस इज कसम. एनी डाउट्स?
ओके, सो ये 64 आर्ट्स में क्या क्या आता है? हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस। आई थिंक ये सभी चीजों का तो मीनिंग आपको पता है, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, वो तो पता है ना। और एंशियंट करेंसीज वर ऑल्सो वैल्यूएबल। करेंसी जो है, पुराने कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, तो दीज, और सबसे पहले होते थे क्ले के बने हुए कॉइन्स, तो these are also a part of our cultural heritage. Okay. Prosperity of India was main attraction for visitors to attack India. There is opposite words used, visitors and attack. Visitors आते हैं देखने के लिए, अटैक करना मतलब टू रूल ओवर इंडिया। तो दे केम टू इंडिया, ये सभी जो 64 डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स है वो देखने के लिए दे विजिटेड इंडिया, एंड दे वर सो मच अट्रैक्टेड बाय इंडिया दैट दे अटैक्ड इट एंड स्टार्टेड रूलिंग ओवर इट। हमारी हिस्ट्री तो आपको पता ही है ना, पहले सुल्तान आए, फिर मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, यू नो ऑल दिस थिंग्स। वी आर स्टडीइंग सिंस 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड। Okay, so this is the main reason that the people came to India first to visit and they attacked. Today, the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage which has been accepted by the whole world. अभी आजकल तो आपको पता है कि योगा का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड, है ना, इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए। एंड देयर आर सो मेनी डिजीजेस विच कैन बी क्योर्ड ओनली थ्रू योगा विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। तो ये योगा का इम्पोर्टेंस नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज सीन इन होल ऑफ द वर्ल्ड नाउअडेज। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज की मेडिसिन लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और वो लोग क्या करते हैं, खुद योगा करके अपने आप क्योर हो जाते हैं, है ना। सो दे हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। हमारे यहाँ अभी तक उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वहां पर बहुत सारी स्कूल में भी योगा हैज बीन मेड अ कंपलसरी सब्जेक्ट, संस्कृत हैज बीन मेड अ कंपलसरी सब्जेक्ट। उनको रामायण महाभारत सब सिखाते हैं कंपलसरी। और हमें अगर कोई पूछे कि सुग्रीव और वाली कौन था तो सोचना पड़ता है। Our rich cultural heritage, which we should be feeling importance, they know already. They are valuing it, not us. Right? So you are the next generation. You should see to it that you carry on the tradition further. आपके ऊपर ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay? Let's continue. Consequently, 21st June is celebrated as World Yoga Day. It's World Yoga Day, जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अभी अंडरलाइन करो 21 जून एंड अंडरलाइन वर्ल्ड योगा डे। ये भी एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। In this chapter, we will learn about varied art and craft of India. ये जो 64 आर्ट्स है उसमें से थोड़े आर्ट एंड क्राफ्ट we are going to learn in India. Art of Indian artisans. What do you mean by artisans? Artisans meaning workers. Okay, underline the word artisans and write the meaning workers. सभी वर्कर्स के पास अलग अलग स्किल्स थी फॉर देयर ओन आर्ट। तो कौन कौन से आर्ट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट वी आर रीडिंग। The beauty of Indian cultural heritage is lying in traditional art of its artisans. They have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industry. Weaving and embroidery. अच्छा, अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप मुझे पूछोगे। Weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industry, animal work. एनिमल मतलब वो प्राणियों से कनेक्टेड नहीं है। एनिमल मीन्स यू कैन से पॉलिशिंग ऑफ वुड और मेटल एक्सेट्रा। अच्छा, इसको अंडरलाइन करो, एनिमल वर्क एंड राइट द मीनिंग, पॉलिशिंग वुड, मेटल एक्सेट्रा। जब आप कोई वुड की चीज बनाते हो और फिर उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए जब पॉलिश करते हो, इट बिकम्स मोर शाइनी, राइट। एंड दिस मेकिंग देम शाइनी इज नोन एज एनिमल वर्क। अगर आपको पता है आपके घर में जब फर्नीचर बनता है ना,
तो फर्नीचर बनने के बाद उसमें सनमाइका लगाते हैं और बाकी की बॉर्डर्स जो होती है उसको टर्पेंटाइन से वो कलर करते हैं. हैव यू सीन दिस थिंग? है ना. और उसकी स्मॉल स्मेल जो आती है, दैट स्मेल इज वेरी नाइस. तो उसको बोलते हैं एनिमल वर्क. मतलब वुड या मेटल को जब आप पॉलिश करके स्मूथ बना के ज्यादा अट्रैक्टिव करते हो, दैट इज एनिमल वर्क. स्कल्पचर मीनिंग मेकिंग ऑफ आइडल्स और स्टेच्यूज. अंडरलाइन द वर्ड स्कल्पचर and write the meaning. Making of statues. Now these statues can be of a human being, of an animal, of God, anybody. Okay. Then architecture. What is architecture? Yes. Construction. इसका भी meaning लिख लो. Architecture meaning construction. Aqiq work. Now aqiq work जिसको हम बोलते हैं stone work. मेटल में, कपड़े में, फिर राजा महाराजा जो क्राउन पहनते थे उनमें जब आप प्रेशियस स्टोन्स डालते हो तो उसको बोलते हैं अकीक वर्क. सो अगेन अंडरलाइन द वर्ड अकीक and write the meaning. Precious stones. Hmm. So aqiq work, diamond related artistic workmanship and knitting work. knitting में क्या आता है? आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए. knitting पता है? यस. तो अभी निटिंग वर्क को अंडरलाइन करो और उसमें लिखो वुल. बड़े बड़े वो नीडल्स होते हैं. नीडल्स मतलब सपोज हमारा जनरली नॉर्मल नीडल इतना होता है तो वुलन का इतना लंबा होता है. मूवीज में पता, या अगर आपको पता है तो हमारी दादी जी नीचे बैठ के बहुत निटिंग वर्क करती है, अगर आपने ऑफिस में देखा होगा तो. हैव यू सीन हर? वुलन स्वेटर्स बनाते हैं, कैप बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं ऐसे निटिंग करके. समझ में आ गया? ठीक है. ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीजें इंडिया में आज भी चल रही है, कोई ज्यादा कोई कम. इट इज वेरी मच वैल्यूड एंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग. ये जितने भी हमने कॉमा कॉमा करके रीड किए, एवरीथिंग नीड्स स्पेशल स्किल्स, स्पेशल एक्सपर्टीज. इसमें से सम ऑफ देम वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. क्लियर? समझ में आ रहा है? Okay, we will start with the clay work. Clay is the most ancient work क्योंकि सब जब हमारे पास मेटल नहीं था, वुड नहीं था, क्लॉथ नहीं था, we used to use more of the clay. Okay, let's start. Men and clay have been closely associated since ancient times. अब ये भी इसमें आता है, MCQs में भी आता है and explain the statement. Men and clay have been closely associated. Explain the statement में भी आता है. Okay, so you have to remember the relation between man and clay. The whole life of man revolves around it from the cradle to the grave. Cradle मतलब वो कोड़िया जिसमें आप सोते हो. Grave means हाँ, जब हम मर जाते कब्र में डालते हैं, स्मशान. Okay, so from your birth till your death, you are very much connected to the clay. Okay, before the invention of metal, clay things were used abundantly. Abundantly means lot of, plenty. Okay, underline the word abundantly and write the meaning plenty. When metal was not there, clay was used very much. Toys, pots, pitchers, earthen lamps, clay stove, that is chula. Clay wares were made by the potters to store grains, milk, ghee, curd and buttermilk. अब clay में से क्या क्या बनाते थे? Toys, pots, pitchers. Now do you know what is a pitcher? It is like this shape.
इसको बोलते हैं कलश। कलश देखा, लोटा लोटा जिसको बोलते हैं, राइट। तो पिक्चर को अंडरलाइन करके मीनिंग लिखो कलश। उस टाइम पे कलश बहुत यूज होता है। सॉरी, abundantly. Abundantly means plenty. Okay, and out of clay what they used to make toys, pots, pitchers meaning कलश, earthen lamps, वो दिए बनाते थे। earthen lamp मतलब दिया। क्ले स्टोव, चूल्हा, आपको पता है ना चूल्हे में रसोई करते थे। देन क्ले वेयर्स, अब वेयर्स का स्पेलिंग देखो, इट्स WARES। वो पहनने वाला वेयर नहीं, मिट्टी के कोई कपड़े बना के नहीं पहनता था। इट इज वेयर्स, वेयर्स मीनिंग वेसल्स। ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड वेयर्स। हाँ, हम बोलते हैं ना ग्लास वेयर, देन प्लास्टिक वेयर। तो ये इट्स WARES, WEAR ये वाला नहीं है, इट्स WARES। वेयर्स मतलब यूटेंसिल्स, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो वाला वेयर। ठीक है, सो अंडरलाइन द वर्ड वेयर्स एंड राइट utensils. So clay utensils were made, and how did they use it? They used to store grains, milk, ghee, curd and buttermilk. मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड अप ऑफ क्ले। किचन में जितने भी चीजें थी, मैक्सिमम वाज मेड ऑफ क्ले। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस और कुबास, कुबा मतलब हट, वर ऑल्सो प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले। दे यूज टू मिक्स काउडंग एंड क्ले। काउडंग आपको पता है गोबर, ठीक है। तो गोबर को और क्ले को मिक्स करके दे यूज टू प्लास्टर द हाउसेस। इससे क्या होता क्या था कि घर के अंदर एकदम ठंडक रहती थी। The atmosphere inside the house was very pleasant. Okay? We have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture in ancient time. Indus Valley civilization, I think सबको पता है। तो उस टाइम से हमारे पास क्ले पॉट्स हैं। पॉटर्स व्हील, व्हाट इज दिस पॉटर्स व्हील? यस, इट इज अ व्हील जो कि व्हीकल के तरह से वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है, नीचे रखते हैं। दैट व्हील मूव्स, और ऊपर जो पॉटर है वो अपने अलग अलग शेप्स के वेसल्स बनाते हैं। ओके, सो द पॉटर्स व्हील इज द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशियंट इंडिया। सभी चीजें वो व्हील में से बनती थी। इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी कैन सी गरबा। गरबा देखा है आपने, वो होल्स वाला, नवरात्रि के टाइम सबके घरों में आता है, ठीक है। गरबा is also used in नवरात्रि, having holes containing earthen lamp inside, मतलब मिट्टी का बनाते हैं, उसमें holes होता है, and it is used during नवरात्रि. So that is, even today clay is used over there, वो clay के ही होते हैं। Okay? Any doubts? Anybody? Okay. Next we'll continue in the next lecture. We'll end up to here. Anything to say? Anything to ask? Shall we end the lecture? Okay, chalo. Bye bye all of you. Have a nice day. Bye bye.